مجھے یتیم خانے سے لایا گیا تھا۔ میں ایک لاوارث بچی جسے وقتی طور پر کھلونا سمجھ کر دل بہلایا گیا تھا۔ پھر ان کے گھر بھی اولاد ہو گئی۔ پھر جو مجھے یتیم خانے سے لے کر آئے تھے وہی میرے دشمن بن گئے۔ اپنی اولاد ملی تو بالکل بدل گئے۔ میں جوان ہونے لگی تھی۔ مجھے شادی کا شوق ہونے لگا تھا، جس طرح ہر جوان لڑکی کو ہوتا ہے۔ جب میں نے گھر شادی کا کہا تو انہوں نے مجھے ایسی بات کہی کہ سنو ذرا یونس کے کمرے میں جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اسے تو کچھ نہیں منگوانا۔ انہیں اپنے بڑے بیٹے کا خیال آیا۔ جی چچی، وہ پاؤں میں چپل پہن کر یونس کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نام سے دل کی دھڑکن نہ جانے کیوں بڑھ جاتی تھی، اور ایسا تب سے تھا جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ تب اسے یونس نامی لمبے سے لڑکے سے ڈر لگتا تھا، اور اب کے دھڑکنے کا سبب کچھ اور تھا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو وہ کمپیوٹر پر کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ کام تو اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ دادا جان کے بزنس کو چچا جان اور بابا نے سنبھالا، اور یونس نے اسے ترقی کی بلندی پر پہنچا دیا۔ یونس بھائی، وہ چچی امی پوچھ رہی ہیں کہ رمضان کی لسٹ بنا رہے ہیں، کچھ چاہیے آپ کو؟ ہاں، وہ اس کی آواز پر چونکا۔ ہلکے رنگوں کے پرانے سے سوٹ میں جو شاید مریم ہی تھی، وہ بہت سادہ مگر معصوم لگ رہی تھی۔ ہاں نہیں، کچھ نہیں، تمہیں پتا ہے میں سب کچھ کھا لیتا ہوں۔ سنو، اس نے کام سے سر اٹھا کر بہت غور سے اسے دیکھا، تمہیں کچھ پسند ہے؟ نہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ میں بھی سب کچھ کھا لیتی ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر نکل گئی۔ اس گھر میں بہت افراد تھے، اور پھر امی کے چلے جانے کے بعد مما کی گود میں ربیہ آئی تو مریم کہیں پس منظر میں ہی چلی گئی۔ پھر بابا اور مما ربیہ کو لے کر دبئی چلے گئے، اور وہ وہی دبئی میں ہی رہ گئی۔ شروع میں بابا اس کے نام پر رقم بھیجتے رہے، پھر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ربیہ بڑی ہو گئی تھی اور اس کی پڑھائی کے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے، شاید اس لیے انہوں نے مریم کے لیے رقم بھیجنی بند کر دی، لاشعوری طور پر ہی۔ لیکن گھر کے افراد کا رویہ بھی اس کے ساتھ ویسا نہ رہا جیسا امی اور ابو کی موجودگی میں تھا۔ وہ 3 سال کی تھی جب امی اور بابا نے اسے یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ تب سے وہ یونس کی شخصیت سے متاثر تھی۔ زمانہ طالبہ علمی میں ذہین طالبہ علم تھا، دراز قد، صحت مند، بھاری جسامت، بھاری آواز اور اس پر سنجیدگی۔ وہ جیسے جیسے عمر کی منازل طے کرتا گیا، اس کی شخصیت کا یہ تاثر اور بھی سحر انگیز ہوتا گیا۔ مریم کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب یونس نے زندگی میں سب سے اہم مقام حاصل کر لیا۔ سب لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ روز حلال کمیٹی کچھ ہی دیر میں چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کے بارے میں اعلان کرنے والی تھی۔ وہ سب کے لیے چائے بنا کر لائی۔ جب چاند کے نظر آنے کی خبر چلنے لگی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دینے لگے۔ سنو مریم، عائشہ سے پوچھ کر سحری کے لیے آٹا بھی گوندھ دو، وہ فیروز تو قیمہ ہی کھائے گا، ہری مرچ ڈال کر قیمہ بھی یاد سے بھون دینا۔ سنو، دہی بھی گھر پہ ہی جما دو، سحری تک تیار ہو جائے گی۔ دادی کا ہدایت نامہ شروع ہو گیا، اور وہ جی اچھا کہہ کر کام میں لگ گئی۔ تمام کام نپٹاتے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ تمام سامان فریج میں رکھ رہی تھی جب کسی کے کھنکھاڑنے کی آواز آئی۔ یونس سر پر نماز کی ٹوپی رکھے دروازے میں کھڑا تھا۔ تراویح پڑھ کر آ رہا ہوں، تمہیں کچن میں دیکھا تو چلا آیا۔ کوئی مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ جی نہیں، بہت شکریہ۔ اس کا دل تو یونس کو دیکھ کر عجیب ہی دھڑکنے لگتا تھا۔ میں فارمیلٹی نہیں نبھا رہا ہوں، سچ میں پوچھ رہا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر فریج کا جائزہ لینے لگا۔ ہر شے تیار کر کے ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر کے اس نے فریج میں رکھ دی تھی۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی مریم، تمہاری امی کوئی بہت ہی سلیقہ شار خاتون ہوں گی، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس کی اس تعریف نے اس کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل کر دیا۔ او آئی ایم سوری، نہیں، جو سچ ہے وہ تو ہے، اور وہ جو کوئی بھی تھی، آپ نے ان کی تعریف ہی کی ہے، اور ماں کی تعریف کس سے بری لگتی ہے؟ چاہے میں نے انہیں نہیں دیکھا، مگر وہ میری ماں تو ہیں۔ وہ آنسوؤں پر بند نہ بھانپ سکی۔ چلو، اگر موڈ ہو تو 2 کپ چائے بنا لو، لان میں جا رہا ہوں میں، وہ باہر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اس نے 1 کپ چائے بنائی، اسے دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یونس جانتا تھا وہ بہت ہی ڈری رہتی ہے فیروز کے ساتھ، تو پھر بھی بات چیت کر لیتی تھی۔ اگر کوئی اور آ جاتا تو خود کو کچن کی حد تک محدود کر لیتی۔ بہت با کردار اور با سلیقہ لڑکی تھی۔ چپس کے فرش پر سرف پھینک کر جھاڑو سے رگڑ کر فرش دھوتے ہوئے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ وہ مڑی تو یونس کو دیکھ کر ڈر گئی۔ آج پہلا روزہ ہے، گرمی ہے اور تم کام کر رہی ہو، روزہ رکھ کر، بلکہ سب کو سحری کروا کر تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں یونس بھائی، میں ٹھیک ہوں، مجھے کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور ویسے بھی اگر کام نہیں کروں گی تو اور کیا کروں گی؟ وہ وائپر لگاتے ہوئے بولی،
पानी का पाइप उसने दाएं तरफ लगी क्यारी में फेंक दिया। प्यासी जमीन सैराब होने लगी। यूनुस ने बहुत गौर से जमीन में पानी जज़ब होते देखा। उस लड़की का दिल भी तो बिल्कुल उस जमीन जैसा था ना, प्यासा, मोहब्बत को तरसा हुआ। मगर तुम बहुत ज्यादा काम करती हो मरियम, अपनी सेहत देखो पहले। बहुत गंदा हो रहा था। आप सबकी मोटरसाइकिलें और चचा जान की गाड़ी के टायर पर इतना गंद लग रहा था। तुम खुद को मुलाजमा बनाओ, सभी तुम्हें मुलाजमा ही समझेंगे। तुम्हारा भी हक है मरियम, जैसे रबी और आयशा का हक है। हक वो वाइपर छोड़कर यूनुस के सामने जा खड़ी हुई। कैसा हक यूनुस भाई? मैं तो आप लोगों का खून नहीं हूँ, मैं तो किसी की कुछ नहीं लगती। एक खुला को पूर्ण करने के लिए मैं इस घर में आई। एक इमारत की ईंट कम थी, मैं वो ईंट बनकर आई। जब इमारत ही ना रही तो मैं अम्मी और अब्बू को तो मिल गई ना। रबिया इनका अपना खून, वो इस तरह सोचती थी। यूनुस के दिल को झटका लगा। तुम हमारी मरियम हो, आप समझते हैं ये आपका बड़प्पन है यूनुस भाई, वरना अपना खून तो अपना ही होता है। अगर ऐसा ना होता तो अब्बू रबिया के पास नहीं, यहाँ मेरे पास होते। उनको अब्बू कहकर बुलाना मैंने शुरू किया था। बाप होने का एहसास मैंने दिलाया था। छोड़े यूनुस भाई, आबले मत फोड़े। आबला फूट जाए तो बहुत तकलीफ होती है। खुश रहा करो मरियम। यूनुस का दिल थम सा गया। दिल में अजीब सा दर्द जागा। उस लड़की के लिए ये सब खुश रहने के लिए तो करती हूँ, जिंदगी का हिस्सा है ये काम मेरे लिए। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा, मगर खुश रहने के लिए और भी कई तरीके हैं। वो बात मुकम्मल करके आगे बढ़ गया। मरियम ने उसकी चौड़ी पुश्त की सिमत देखा। वो क्यों इतनी फिक्र कर रहा था उसकी। सारे घर की साफ सुथराई के बाद उसने इस्त्री लगा ली। सबके कपड़े इस्त्री करके हैंगर किए। फिर किचन में घुस गई। अफ्तारी के लिए भी सबकी अपनी अपनी फरमाइश थी। किसी को दही बड़े पसंद थे तो किसी को फ्रूट चाट तो किसी ने कबाब। हर किसी के पसंद का ख्याल रखना था। चच्ची और आयशा तो सो रही थी। वो जानती थी कि वो अब इफ्तारी से 1-1.5 घंटा पहले ही उठेंगी। असर की नमाज अदा करके दादी अम्मा का परहेसी खाना भी तैयार कर दिया। वो बरामदे की तख्त पर बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी जब यूनुस उसके पास आ रुका। उसने रुकू पूरा करके कुरान पाक को सीने से लगाया और नजर उठाकर देखा। तुम अल्लाह के कितने नजदीक हो मरियम, बिल्कुल मासूम, सबको खुश रखती हो। वो तुमसे बहुत खुश होगा। तुम अपने हिस्से की खुशियाँ क्यों नहीं मांग लेती? मांगती हूँ, जब वक्त आएगा और नसीब में होंगी तो मिल जाएंगी, वरना मुझे कोई गिला नहीं। मैं ऐसे भी खुश हूँ। वह ऐसे ही साबिर और शाकिर। यूनुस के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और वो चला गया। असर से कुछ देर पहले चिप्स के धुलाई फर्श पर कुर्सियां रखकर दरमियान में मेज पर ताजा फूलों का गुलदस्ता सजाकर वो बावर्ची खाने में घुस गई। घर के अफराद के हिसाब से इफ्तारी की तैयारी अभी से करती, वक्त पर फारिग होती। बावर्ची खाने की खिड़की से उसने यूनुस को अंदर दाखिल होते देखा था। मोबाइल उसके कान से लगा था। चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। उसे महसूस हुआ कि शायद गर्मी का रोजा है और रोजा लग रहा है। उसने यूनुस की पसंद के पकोड़े बनाने की तैयारी शुरू कर दी। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया। साफ सुथरे और खुशबूदार माहौल का असर था कि मोबाइल कान से हटाती ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। फिर न जाने किस ख्याल के तहत उसने जोर जोर से उसे आवाज देना शुरू कर दी, मरियम मरियम जी यूनुस भाई। उसके यूनुस भाई कहने पर वो पहली बार अंदर ही अंदर चिढ़ा था। इफ्तारी में मेरे लिए क्या बना रही हो? उसे बात करना अच्छा लग रहा था। पकोड़े, समोसे और दही बड़े। उसने बताया, हाँ ठीक है, सुनो मरियम। वो सर असबाब में हिलाते हुए फिर मुस्कुराने लगा। वो मेरा दोस्त है हसन, उसकी वालदा आना चाह रही है आयशा के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो शायद इसलिए खुश थे कि बहन के लिए इतने अच्छे घराने का रिश्ता आया था। मैं क्या कह सकती हूँ, आपको बेहतर अंदाजा होगा। भाई हैं आप उसके। उसने आहिस्तगी से कहा, नहीं तुम भी तो लड़की हो और एक लड़की अपनी शादी के लिए किस तरह के लड़के को पसंद करती है उसका मुझे क्या अंदाजा, तुम बताओ ना। हसन को देखा है ना तुमने, पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब है, अपनी ज्यादा रिहाइश है। फिलहाल उसके पास मोटरसाइकिल है, मगर 1-2 महीने तक गाड़ी लेने का इरादा है उसका। हर किसी का मियार मुख्तलिफ होता है यूनुस भाई। मुझे क्या पता कि आयशा को कैसा शौहर चाहिए। अगर आप मुझसे एक लड़की की ख्वाहिश और पसंद पूछ रहे हैं तो मुझे तो बस वो चाहिए जो मुझे अपना नाम दे और रहने के लिए छत। मुझे ये डर ना हो कि मेरा कोई नहीं। ये बात करते हुए उसकी आंखें उभर आईं। यूनुस ने देखा कितनी मरहूमी थी उसकी आंखों में। वाकई आज तक मरियम अपना पूरा नाम नहीं लेती थी। पढ़ाई के लिए फॉर्म पर भी ताया अब्बू का नाम सरपरस्त के खाने में ही लिखा जाता था। मरियम यूनुस ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए उसने उसके नाम को मुकम्मल किया था और ज़ेरे लब मुस्कुराया था। यूनुस भाई, आयशा का रिश्ता आ रहा
रहा ہے یہ تو خوشی کی بات ہے، پھر مجھے ایسا کیوں لگا کہ آپ پریشانی میں فون سن رہے تھے؟ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں وہ حسن نے جب رشتے کی بات چھڑی تو میں سمجھا کہ وہ تمہارے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی بات پر مریم نے حیرت سے یونس کی طرف دیکھا، وہ اتنا مکمل شخص اسے اپنے سامنے اتنا ادھورا کیوں لگ رہا تھا؟ اس کے چہرے پر مریم کو دیکھ کر عجیب سے رنگ چمکنے لگے تھے۔ میں کچھ کام کے لیے باہر جا رہا ہوں، افطاری سے کچھ دیر پہلے ہی آ جاؤں گا، تم جاؤ کچن میں۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل گیا۔ مریم کتنے ہی لمحے اس کی بات پر غور کرتی رہی۔ کمرے کی دیواروں پر لگے فریم کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا۔ چچی موبائل ہاتھ میں لیے دادی کے سرہانے کھڑی تھی۔ معاملہ گمگیر لگ رہا تھا۔ ربیہ اور یونس دادی کا لہجہ سوالیہ تھا۔ اس کے قدم میز پر ٹکرائے۔ چچی نے مڑ کر اسے دیکھا اور دوبارہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانس جیسے ساکن تھی۔ یونس سے پوچھنا پڑے گا، بہت فرق ہے یونس اور ربیہ میں 8-9 برس کا۔ پھر یونس کا مزاج ملا جلا ہے، کبھی سنجیدہ اور کبھی بے تکلف، اور وہ ربیہ اکڑ مزاج۔ چچی بڑبڑاہٹ کے انداز میں بولی، وہ چاہ رہی تھی کہ دادی فون پر ہی انکار کر دے۔ میں کپڑا لے کر چھلانگ لگا کر میز سے اتری اور بے حس و حرکت چچی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ برداشت نہیں ہوا میری عائشہ کا رشتہ، غلطی میری ہی ہے، ابھی رشتہ آیا نہیں، میں نے ڈھنڈورا پیٹ دیا، اب اتنی جلدی ربیہ کے لیے اور کون ملتا؟ نظر آ گیا میرا یونس۔ چچی ماتھا پیٹنے لگی۔ دادی بھی فون بند کر کے گہری سوچ میں تھی۔ ایسا کچھ غلط میں نہیں بہو، گھر کی بیٹی ہے اور گھر کا بیٹا، اگر رشتہ ہو جائے تو دادی کا ووٹ ربیہ کے حق میں تھا۔ اماں پہلی بات تو یہ کہ میں یونس سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتی، میرے مائکے میں بھی بہت لڑکیاں ہیں خوبصورت اور پڑھی لکھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم ان کی لے پالک بیٹی ہے، ہماری نہیں۔ ربیہ سے پہلے اس کے فرض سے فارغ ہوں، اگر مناسب طریقے سے اس کے لیے رشتہ دیکھیں اور رخصت کریں۔ جب تک گود خالی تھی اس سے دل بہلایا، اپنی اولاد ملی تو یہاں ہمارے دم پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ارے ہمیں کیا پتا کس کی اولاد ہے، کیا نام نسب ہے اور کس خاندان سے ہے۔ ان کی زبان سے پہلی بار وہ اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ سن رہی تھی، اور تم یہاں کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہو؟ دیکھو باہر کتنا کام ہے۔ وہ اس طرف مڑی، اس نے باہر جانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، آنکھیں آسمان پر ابھرتے تاروں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ دل کی دنیا ابھی ویسے ہی کہاں تھی کہ اجڑ چلی تھی، یوں جیسے کہ کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ خوابوں کو، خواہشوں کو، محبت کی طرف اٹھنے والے پہلے قدم کے بعد ہی نو انٹری کا بورڈ لگا دیا تھا۔ یونس کسی ممنوعہ علاقے کی طرح دکھائی دینے لگا تھا، اور پھر اس کی حیثیت ہی کیا تھی ایسے اونچے خواب دیکھنے کی؟ کون تھی وہ یتیم خانے سے لائی گئی ایک لاوارث بچی جسے وقتی طور پر کھلونا سمجھ کر دل بہلایا گیا؟ اور وہ یونس، وہ تو اس گھر کا فرد تھا، اس گھر کا وارث پوتا، جو کماؤ بھی تھا اور سب سے پر اثر شخصیت کا مالک۔ وہ چاند تھا اور مریم خاک۔ وہ ربیہ کے لیے ہاں کر دے گا، یہ سوچ کر ہی اسے دھچکا لگا تھا۔ اس نے عائشہ کو کہتے سنا تھا، یونس بھائی امی خاص طور پر دادی کے سامنے انکار ہی نہیں کر سکتے، اور کریں گے بھی کیوں؟ کس کے لیے؟ ان کے پاس ربیہ سے اچھی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کچھ کھو جانے کا احساس تھا۔ ابھی اس نے پایا ہی کیا تھا؟ ابھی تو ایک نئے احساس کا وجود تھا جس نے کسی پودے کی طرح بیج سے سر نکالا تھا۔ مریم کسی نے دروازہ پیٹا تھا، وہ عائشہ تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتی باہر آئی۔ کوئی ہوش ہے تمہیں؟ کیا وقت ہو گیا ہے؟ سحری بنانی ہے، جلدی کرو، امی کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ وہ گھبرا گئی جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اور پھر گھر کے کاموں میں پڑی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ شرمندہ تھی۔ وہ وضو کر کے جلدی سے کچن میں گھس گئی۔ آپ آرام کریں چچی، میں کر لیتی ہوں۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ ہاں ایسا کون سا سوگ بنا رہی تھی کہ ہوش نہیں رہا؟ وہ جاتے جاتے گڑبڑاہٹ کے انداز میں بولی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، یونس دادی کے پاس بیٹھ رہے تھے۔ وہ کیا کہتی کہ اس کا روگ کیا ہے؟ بہو میرا خیال ہے کہ ربیہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آ جائے، یہاں کا ماحول دیکھ لے تو پھر بات آگے چلائیں، اتنی جلد بازی نہ کریں، اور پھر ابھی عائشہ کے رشتے کی ہاں بھی کرنی ہے، پہلے اس فرض سے فارغ ہو جائیں۔ دادی نے سحری کے بعد بات چھیڑی۔ وہ جو برتن سمیٹ رہی تھی یونس کی طرف دیکھنے لگی۔ فیروز نے اس کی سمت دیکھا، شاید وہ اس کی چوری پکڑنا چاہ رہا تھا۔ وہ برتن لے کر اندر بڑھ گئی۔ کیا مطلب اماں؟ آپ نے انکار نہیں کیا شازیہ تائی کو؟ اور ویسے بھی یونس کی عمر ہے اب شادی کی، ماشاءاللہ سے 25 برس کا ہو گیا ہے، اور کتنی دیر کرو گی؟ وہ تو ٹھیک ہے اماں، مگر اور پھر یہ مریم، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے انہوں نے؟ چچی کی بات پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ یونس کی نظریں اٹھی۔ بہو مریم کی حقیقت سے اپنے پرائے سب واقف ہیں، کسی اچھے گھرانے سے تو رشتہ آنے سے رہا، ہاں اگر آ بھی گیا تو ہم سب کی ذمہ
ईमानदारी है। राशिद तो चाहता ही नहीं था बच्चा गोद लेना, ये तो अल्लाह बख्शे बहू को अपनी महरूमी दूर करने के लिए मियाँ से लड़ झगड़ के ये बच्ची ले आई। खुद अल्लाह को प्यारी हुई तो राशिद की उम्र ही क्या थी। उसने शासिया से ब्याह किया तो खुदा ने अपनी बच्ची दे दी। हमारा जी ना चाहा मरियम को दोबारा यतीम खाने भेजने पर। क्या करते, सर पर हाथ रख दिया। अब अकेले राशिद को जिम्मेदार ठहराना गलत है। दादी जो कह रही थी सच था। वो एक पल में कितनी फालतू सी हो गई थी। यूनुस की आंखों में क्या कुछ नहीं था। वो उठकर चला गया। मैंने यूनुस से भी बात की है। पहले ताया ताई और रबिया को तो आने दें। दादी की बात पर फिरोज की नजरें एक बार फिर उसकी तरफ उठी थी। वो दोबारा किचन में रूपोश हो गई। शाम का वक्त था। आज इफ्तारी में एहतमाम मामूल से कुछ ज्यादा था। आयशा और हसन का रिश्ता पक्का हो रहा था। निकाह या मंगनी का फैसला ईद के बाद पर छोड़ दिया गया था। दादी का ख्याल था कि तब तक राशिद और शासिया भी आ जाएंगे और यूनुस और रबिया के सिलसिले में भी वो कोई फैसला कर लेंगे तो दोनों रस्में इकट्ठी हो जाएंगी। वो लोन के घिसे हुए बद रंग जोड़े में मलबूस बालों का जूड़ा पहने किचन में सबकी पसंद के मशरूबात बनाने में मसरूफ थी। जब यूनुस घर में दाखिल हुआ किचन की खिड़की खुली थी। चिप्स के धुले धुलाए फर्श पर कुर्सियां तरतीब से रखी थी। मेज पर ताजा फूलों का गुलदस्ता महक रहा था। ये उसका रोज का मामूल था। वो कुर्सी पर बैठ गया। वो अपने काम में मगन थी। यूनुस ने कभी उसे ढंग के कपड़ों में नहीं देखा था। हमेशा आयशा उसके लिए अपने इस्तेमाल कपड़ों का शॉपर उठा लाती थी। आयशा और हसन का रिश्ता पक्का हो गया। इफ्तारी के बाद दुआ कर दी गई और रस्म ईद के बाद रखी गई। ये खबर जब बाहर वालों को सुनाई गई तो उन्होंने यूनुस और रबिया की बात फिर से छेड़ दी। जो भी है होगा तो वही जो यूनुस चाहेगा। आखिर इस घर का सबसे ज़हीन और कमाऊ लड़का है। फिर मैं इसकी माँ हूँ। कुछ हक है। मेरा अरमान है। हाँ तो फिरोज पे कर लेना। ये अरमान पूरे। दादी ने उसे खफकी से घूरा। देख रबिया पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, आजकल के तौर तरीके जानती है, सबसे बढ़कर बाहर से आ रही है, खूब दौलत कमाई है उसके बाप ने, सब कुछ उसी का तो है। आजकल के लड़के यही चाहते हैं। आपने मेरे यूनुस को भी ऐसा समझ लिया। चची का गुस्सा ठीक था। वो बर्तन समेटने लगी। न जाने क्यों किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। वो असर की नमाज अदा करके बाहर बरामदे में आ बैठी। रमजानुल मुबारक की वजह से अमूमन उस वक्त घर के सब अफराद सो रहे होते थे। यूनुस और फिरोज अपने अपने काम पर होते थे। वो यूं ही तख्त पर बैठी ला यानी सोचों में डूबी हुई थी जब इतलाई घंटी बज उठी। ये इस वक्त कौन हो सकता है। वो पाँव में चप्पल पहनकर बाहर की तरफ बढ़ी। गेट के बाहर गाड़ी की आवाज थी। ये तो यूनुस की गाड़ी की आवाज थी। उसने घबरा कर गेट खोल दिया। शायद तबीयत खराब हो गई हो। गेट खोलने पर उसे फिरोज का चेहरा नजर आया जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। बराबर वाली सीट पर नजर पड़ी तो दिल ने धड़कना छोड़ दिया। हाथ पाँव में पसीना आने लगा। पीछे भी जो दो नफूस बैठे थे इनकी नजरें इस वजूद पर थी। अस्सलाम वालेकुम। अबू ने हाथ मौदे अंदाज में सलाम किया था। उन्होंने इसके सर पर धीरे से हाथ रखा और अंदर बढ़ के रबी और मम्मा ने तो लम्हा भर रुकने की जहमत भी गवारा ना की। या यूं अचानक वो फिरोज की तरफ मुड़ी। खतरा उनको तुमसे और तुम्हें उनसे। मरियम इनके और तुम्हारे दरमियान यूनुस नामी इलाका है जिसे फतह करने की जंग है। फिरोज ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सर झुका लिया। जंग वो लोग करते हैं जिनके पास हथियार हो। मैं तो खाली हाथ ही नहीं खाली दामन हूँ और खाली दिल भी हूँ। वो रो पड़ी। फिरोज उसकी नजर से समझ चुका था कि वो उसके भाई को पसंद करती है। सब कुछ यूनुस पर मुनस्सिर है। तुम उससे खुलकर बात क्यों नहीं करती। फिरोज का लहजा संजीदा था। क्या उसके हाथों के तोते उड़ गए। फिरोज तो नजूमी निकला। यही कि तुम यूनुस नामी लड़के को फतह करना चाहती हो, हुकूमत करना चाहती हो। मैं इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखती फिरोज और कहने की जरूरत नहीं। वो पता नहीं क्या समझे। मुझे तो बस रहने को ठिकाना चाहिए। उसने साफ आंसू किए। गलत, बिल्कुल गलत। रहने को तो ठिकाना मैं भी दे सकता हूँ मगर जानता हूँ कि तुम्हें इस घर के अलावा कहीं किसी के दिल में भी रहने की जगह चाहिए और वो दिल यूनुस का ही है। वो उसका दिल पढ़ रहा था। वो सफ़े पढ़ रहा था उसके दिल की किताब जो शायद खुद उसने भी ना पढ़ी थी। मरियम कहाँ रह गई। इफ्तार का वक्त हो रहा है। मेरा बेटा आया है। मेरी रबिया आई है। दादी की आवाज पर वो तेज रफ्तारी से अंदर बढ़ी थी। इफ्तारी में यहाँ से वहां तक दस्तरखान बिछा था। वो थोड़ी सी इफ्तारी करके उठ गई। मामा ने बात छेड़ दी। हम लोग रबिया की खातिर आए हैं। करने को तो मैं उसका रिश्ता वहां भी कर सकती थी मगर मुझे शुरू से यूनुस ही पसंद था। अपनी रबिया के लिए। इनकी बात पर यूनुस के माथे पर बल पड़ गई। उसने इसकी तलाश में इधर उधर नजरें दुराई। वो किचन के दरवाजे से चिपकी। रबिया भी यूनुस को पसंद करती है। वहाँ हमने यूनुस की तस्वीर भी लगा रखी थी। जो कोई पूछता था हम यही कहते थे कि रबिया का मंगेतर है। उन्होंने बात जारी रखी। हथियार डाल दूंगी तो कैसी जंग। वो काबिज हो जाएगी और तुम कश्तियां जलाकर जंग का आगाज करो।
मरियम वापसी का कोई रास्ता ना छोड़ो, हाँ इनकी वापसी की टिकट आसानी से हो जाएगी। फिरोज इसकी मदद के बहाने आया था। लम्हा भर को उसके पास रुका। मम्मा की नजरों ने अजीब अंदाज से मंजर को देखा था। हमें कोई एतराज नहीं, मगर मरियम को भी तो गोद लिया था, बेटी बना कर लाए थे, पहले इसके बारे में कुछ सोच लें। भाभी ठीक है, मैंने मरियम को गोद जरूर लिया था, मगर रबिया के बाद जरूरत नहीं रही। जब इंसान के पास अपनी चीज आ जाए तो वो उधार की या मांगी हुई चीज वापस कर देता है। और वैसे भी असल फायदा तो आप लोगों ने उठाया, मुलाजमा नहीं रखनी पड़ी। वैसे कुल वक्ती मुलाजमा रखनी पड़ती तो मैं देखता कैसे पूरी पटती आपकी। वो बोल रहे थे और कुछ टूटता ही जा रहा था। उसने सहारे के लिए कुछ पकड़ना चाहा तो यूनुस ने उसे थाम लिया। उसकी शर्ट से उठती महक और फिरोज की बातों ने दिल की धड़कनों को अलग ही राह समझा दी थी। उसने नजरें उठाकर देखा, वो उसे शानों से थामे उसी को देख रहा था। यानी उसकी शादी हमारे सीमे है? चची ने हैरत से पूछा। मिलकर कर लेंगे सब, कोई रिश्ता देख लें, इसके लिए तो कोई भी चलेगा। और वैसे भी भाभी अपने बेटों पर भी नजर रखें, मुझे तो इसके लक्षण अच्छे नहीं लगते। और फिर क्या पता किसका खून है, ना माँ का पता ना बाप का। मैं तो कहती हूँ किसी ड्राइवर से 2 बोल पड़वा कर रुखसत करें। आपका फिरोज बच जाएगा, बहुत आगे पीछे रहती है इसके। मैंने 2 घंटे में देख लिया, आप 24 घंटे नजर के सामने ना देख सकी। वो जहर उगल रही थी। फिरोज के बारे में उसने घबरा कर यूनुस को देखा। उसकी शानों पर यूनुस की गिरफ्त ढीली पड़ गई। पानी पी लो तुम। वो उसे गिलास थमाकर बाहर निकल गया। कहीं यूनुस ने इनकी बातों से कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। फिरोज मेरा भाई है, दोस्त है। वो फर्श पर बैठकर रोने लगी। जब इंसान के पास अपनी चीज आ जाए तो वो उधार की चीज या मांगी हुई चीज वापस कर देता है। एक बिरछी सी उतर गई दिल में। आपका फिरोज बच जाएगा। इसके किरदार पर कीचड़ उछाली गई। ना माँ का पता ना बाप का, ये गाली थी। वो एक झटके से उठी। वो जो कोई भी देख यकीनन कोई रास्ता नहीं होगा इनके पास। और मेरी माँ यकीनन बहुत सलीका शऊर और बाहया औरत होगी, इसलिए तो मैं इतने सारे काम खुशी से करती हूँ। और मोहब्बत करने के बावजूद कभी यूनुस को बता नहीं सकी। इन्हें कोई हक नहीं मेरे माँ बाप को गाली देने का। अगर इनकी जगह उन्होंने मुझे पाला है तो सिला दे दिया मैंने। इन लोगों की चाकरी करके एक फैसला करके वो अपने कमरे की तरफ पलट गई। चंद चीजें एक बैग में डालकर वो नीचे आई थी। कुछ सोचकर वो पहले यूनुस के कमरे की तरफ बढ़ी, फिर फिरोज के कमरे का दरवाजा बचाया। दरवाजा खुला था, वो अंदर दाखिल हुई। वो हमेशा की तरह मोबाइल पे मसरूफ था। क्या हुआ? फिरोज मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। इसकी बात पर वो सीधा होकर बैठा। खैरियत? उसकी लहजे में हैरत थी। कभी उसने ऐसा मुतालबा ना किया था। तुम मुझे दे रहे हो? ईशा नहीं। हाँ दे रहा हूँ। कितने? उसने पर्स निकाला। 1000 रुपए। 1000 रुपए का क्या करोगी? उसकी छठी हिस्स खतरे की घंटी बजा रही थी। यहाँ से यतीम खाने या दारुल अमान का किराया। वो नोट पकड़ते हुए बोली, या वो करंट खाकर सीधा हुआ। तुम्हें कहा था ना कि कश्तियां जलाकर जंग करो। इफ्तारी के टाइम अबू की बीवी ने बहुत गलत बातें की। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारे बारे में जो गलत बात की यूनुस ने उस पर यकीन कर लिया है। तो फिर मैं किसके लिए कश्तियां जलाऊं? उन्होंने गाली दी मुझे, मेरे माँ बाप की। और तुमने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा? अबू ने उन्हें कहा मैं उधार की चीज हूँ, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। और यूनुस का क्या होगा? मुझे लगता है कि भाई भी तुमसे मोहब्बत करता है। फिरोज ने मुड़कर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। वह मैं तुम्हारा कभी नहीं कहा। उन्होंने ऐसा अभी भी रबिया के हवाले से घर में बात हो रही है तो खामोश या मुखालफत नहीं की। उन्होंने शिकवा जबान से फिसला। बाहर शोर सा हुआ। अरे देखिए रात की पहर क्यों गई फिरोज के कमरे में? भाभी पट्टी बंदी है आपकी आंखों पर। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो दोनों समझ गए कि बाहर क्या शोर मचने वाला है। रमजान का महीना और शक्ल देखो मिसनी की। मैं तो आती ही समझ गई थी। मेहमानों के इस्तकबाल करने की बजाय फिरोज से गप्पे लड़ाने खड़ी हो गई। मोहतरमा मम्मा की आवाज सबसे बुलंद थी। वो अजीब नजरों से फिरोज को देखने लगी। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला। यूनुस बाहर निकला। ट्राउजर और बुनियान गले में तौलिया डालकर गीले बालों के साथ वो इन दोनों के सामने खड़ा था। यानी वो वही था, उसी के कमरे में। ये सब क्या है? मरियम चची उसके सामने आ खड़ी हुई। आयशा और रबिया को बाहर भेज दिया। मासूम बच्चियां हैं, इन्हें क्या पता है ऐसी हरकतों का। उसकी मुट्ठी में दबा 1000 का नोट चची के थप्पड़ से गिर गया। चाचू ने पहली बार उसे शक भरी नजरों से देखा। 1000 रुपए का नोट फिरोज की जेब से निकलवाए हैं तूने? कमीनी दादी का ये लहजा पहली बार सुन रही थी वो, और किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जी किराए के लिए थे मरियम ने। वापिस दारुल अमान जा रही थी। फिरोज से खामोश ना रहा गया। उस लम्हे मरियम को साफ ये फिक्र थी कि कहीं यूनुस भी इसे फिरोज के कमरे में देकर गलत ना समझ ले। बोलती क्यों नहीं? चाहती क्या है? कब से चल रहा है ये सब? चाचू ने सर पकड़ कर झटका
दिया वो पीछे खड़े यूनुस से टकरा गई। उसने भीगी पलकें उठाकर देखा, कितने रंग थे उनकी आंखों में, वो कुछ कहता क्यों नहीं। वो एक झटके से मुड़ा, फिरोज के कपड़ों की अलमारी खोलकर कमीज निकाली, कमीज के बटन बंद करके उसने मरियम की कलाई थाम ली। चलो कहाँ, तकरीबन सब ही चीखे थे। यतीम खाने उधार की चीज वापस कर आए तो बेहतर है। वो उसे घसीटता ले गया। जो डर उसके दिल में जागा था वो सच निकला। दुनिया खत्म हो गई, जीने का मकसद टूट गया। यूनुस ने भी उसे गलत समझ लिया। वो होश से बेगाना किसी रोबोट की तरह उसके पीछे घसीटती चली गई। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा था। इफ्तारी बाजार से आती थी। चिप्स के फर्श पर दरख्तों के पत्ते और परिंदों की गंदगी पड़ी रहती। मेज पर रखा गुलदान वीरान था। वो कुर्सी पर बैठा बार बार किचन की खिड़की की तरफ देखता। भाई, क्या वाकई उसे दारुल अमान छोड़ाए? बहुत मोहब्बत करती थी वो आपसे। मुझे भाई समझती थी अपना। फिरोज का दिल चाहा उसका गिरबान थाम ले, मगर उसने सख्ती से मना किया था कि अब उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। घर में ईद की शॉपिंग अरूज पर थी। साथ ही साथ रबिया और यूनुस की मंगनी की तैयारियां भी चल रही थी। दादी का ख्याल था कि निकाह कर दिया जाए। सब लड़कियां बाजार जाने के लिए तैयार थी। आयशा ने मेहंदी लगवानी थी। चांद रात मुतवक्का थी। फिरोज ने फैसला किया था कि वो उसकी ईदी लेकर शहर के हर दारुल मान में जाएगा, कहीं तो मिलेगी ना। सुन, यूनुस ने उसे बाइक स्टार्ट करते देखकर आवाज लगाई। हाँ, वही अखड़ लहजा, गवाह बनेगा? कैसा सवाल था। वो समझ गया। दादी का ख्याल था कि असर के बाद यूनुस और रबिया की निकाह की तकरीब घर में ही रख दी जाएगी। होगा ना गवाह, यहाँ नहीं वहाँ दारुल अमान में मेरे और मरियम के निकाह के गवाह। उसने बम फोड़ा। ये कुछ सामान है, मैंने खरीद कर ऑफिस में रखा था, ये वहाँ पहुँचा देना। उसे खबर ना हो। दारुल अमान की मैडम बहुत अच्छी औरत है। उसे कहना कि मरियम के लिए सरप्राइज है और यहाँ भी किसी को खबर ना हो। वो तो छुपा रुस्तम निकला था। फिरोज ने उसे गले लगा लिया। आप उस पर शक नहीं करते ना भाई? ये कोई मजाक तो नहीं? मजाक में कोई इतना खर्चा करता है? 60,000 का जोड़ा लिया है उसके लिए। सारी जिंदगी आयशा की उतरन पहनती रही। अब अपने शौहर की कमाई से तो अपना साथी जोड़ा पहने का हक हो उसका। यूनुस मुस्कुराया। फिरोज ने उसे फिर गले लगाया। और यहाँ घर पे वापसी के टिकट आसानी से हो जाएंगी। वो मुस्कुराया और रबिया की आवाज पर संभाली। चांद नजर आने की पूरी उम्मीद थी। सारी लड़कियां ईद की तैयारी कर रही थी। मैडम ने जबरदस्ती उसे भी मेहंदी लगवाई थी। वो तो सारी जिंदगी मेहंदी ना लगाने की कसम खा बैठी थी। यूनुस के नाम की मेहंदी लगती तो बात भी थी। मेहंदी लगी तो सारी लड़कियां चांद देखने के बहाने बाहर निकल गई। वो हाथों में लगी मेहंदी को देखती रही। किसी के खनखनाने पर सर उठाया। यूनुस, दिल को कुछ हुआ? मेरे नाम की मेहंदी लगा ली। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। सीने पर हाथ बांधे। उस रोज आप मुझे यहाँ इनके हवाले करके चले गए। फिरोज बेचारे को मुफ्त की सुननी पड़ी होंगी। वो रोने लगी। नहीं, कुछ गलत होता तो उसे बातें सुननी पड़ती ना। भाई है वो तुम्हारा, मतलब आपने मुझे गलत नहीं समझा तो फिर मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए? आंसू निकल पड़े। ताकि मांगी हुई मरियम को वापस छोड़ जाऊं और अपनी मरियम को अपना बनाकर हमेशा के लिए ले जाऊं। पहले तो तुम्हें यहाँ से चाचू लेकर गए थे, इनसे संभाला ना गया तो इनकी मरियम वापस छोड़ गया। मैं अब मरियम यूनुस को लेकर जाऊंगा। कोई निकालने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर निकालेगा तो यूनुस अपनी बीवी को खिला भी सकता है और रहने के लिए छत भी दे सकता है। वो गमगीन लहजा मरियम को लगा। वो ख्वाब देख रही है और मोहब्बत मोहब्बत करता हूँ इसलिए तो लेने आया हूँ। इसलिए तो हसन के हाथ से रिश्ता आने पर सोच कर परेशान हो गया था कि कहीं कोई तुम्हारा नाम ना लेते। तुम तैयार हो जाओ, निकाह है हमारा। मैं पहले अपने चांद को देखना चाहता हूँ कि मरियम अपने कपड़ों में कितनी प्यारी लगती है। अपने चांद को देख, ईद का चांद देखूंगा। वो करीब आकर खड़ा हुआ। उसके मेहंदी वाले हाथ थाम कर बहुत मोहब्बत से बोला, मैं यूनुस तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगा। तुमसे मरते दम तक मोहब्बत करूंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए खूब मेहनत करूंगा। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए हर दुख झेलूंगा, क्योंकि मोहब्बत करता हूँ तुमसे और करता रहूंगा। वो मेहंदी की खुशबू को सांसों के अंदर उतार रहा था और वो उसके अंदर छुपी इतनी मोहतरम मोहब्बत की मशहूर हो रही थी। यतीम खाने से तुम्हारे असल अम्मी अबू का मुकम्मल पता किया है। मेरे पसंद की शादी की थी उन्होंने। तुम्हारे अबू के घर वाले जागीरदार थे। दोनों को जान का खतरा था, इसलिए तुम्हें तहफ्फुज के ख्याल से यतीम खाने में बतौर अमानत रखवाया, मगर दोनों को मार दिया गया। यही यतीम खाने के बाहर इनके कफन दफन का इंतजाम भी उन्होंने किया था। ताया अबू सब जानते थे। इसके बावजूद होते हैं ऐसे पत्थर दिल लोग भी, और अगर हमें भी मार दिया तो? उसने नजर उठाई, मार ही नहीं सकते। ताया क्या भेजते हैं घर, और अबू तो इस घर में रिटायरमेंट की जिंदगी जी रही हैं। सबके अखराजात पूरे करने वाला यूनुस मर गया तो अयाशियां कैसे होंगी? वो हंसा। मरियम ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया। काजी साहब आ गए और गवाह भी। फिरोज ने हुंकारा भरा। वो पीछे हो गई। उसे दुल्हन
दुल्हन बनाया गया, निकाह हुआ। दारुल अमान की सारी लड़कियों को यूनुस ने जबरदस्ती से इफ्तारी करवाई। घर से बार बार फोन आ रहे थे। निकाह का सारा इंतजाम हो चुका था मगर दूल्हा गायब था। उधर चांद नजर आया, उधर यूनुस दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कहाँ थे, इतनी देर लगा दी, रबिया कब से तैयार बैठी है। फिरोज, रबिया हमारी कजन है, मेहमान भी और इज्जत भी। यहाँ इज्जत बेइज्जती का सवाल है तो इसकी वापसी के टिकट के बारे में क्या ख्याल है। हम वो तो नहीं कर सकते जो उन्होंने मरियम के साथ किया, मगर हमें क्या पता कि दुबई में इसका किरदार। यूनुस की बात अधूरी रह गई। सब अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। आप कहाँ चले गए थे यूनुस, और अब ये सब क्या है। आयशा आगे बढ़ी। भाई का घर की छत देने का वादा करके छत नहीं छीनेंगे और ना ही नाम देने का वादा करके मुकरेंगे। मरियम मेरी बहन है और अपनी बहन की खुशी के लिए मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। फिरोज दुल्हन के बराबर में बैठ गया। ये क्या बकवास है। मरियम की मम्मा और चची एक साथ बोली। अगर आप रबिया की शादी फिरोज से करना चाहती हैं तो ठीक है, वरना आप लोग वापसी की टिकट करवा लें। ये क्या बकवास है। तायाबू धाड़े। ये सच है तायाबू, आप इस बच्चे को अपना बना कर लाए और फिर एक बार फिर उसे लावारिस और यतीम बनाकर चले गए। वो जैसे भी सही मगर हमारे घर में रह रही थी। आप लोग आए तो उस पर इंसान भी लग गया। उसे वो गाली दे दी जिसमें उसका रत्ती भर भी कसूर नहीं था। आपने अपनी ले पालक बच्ची बदनाम और सलील करके वापस भिजवा दी। अपनी बीवी की जुबान बंद ना करा सके क्योंकि मरियम आपकी बेटी रबिया की खुशियों के रास्ते का कांटा थी। खैर, आपकी मरियम को मैं छोड़ आया था दारुल अमान, मगर अपनी बीवी को ले आया हूँ मैं सबसे मिलवाने। मरियम, यूनुस चाहे तो इसे कबूल कर ले, वरना मेरे पास इसे देने को बहुत कुछ है। नाम भी, दौलत भी और छत भी। इसका लहजा बहुत मजबूत था। 2 कदम पीछे हटकर उसने दरवाजा खोला और चादर में सिमटी समेत आई मरियम को अपने साथ अंदर ले आया। ये है मरियम यूनुस, जिसे कोई अब नहीं निकाल सकता क्योंकि ये मेरी बीवी है, अब किसी की ले पालक बेटी नहीं। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। दाया अबू ने उसके सर पर हाथ रखा। बाकी सब भी शर्मिंदा दिखाई देने लगे। रबिया, तुम्हें तो फिरोज के साथ निकाह पर कोई इतराज है क्या। ताई ने रबिया की तरफ देखा। नहीं आंटी, आपके बेटे तो रिश्ता निभाना जानते हैं। एक ने भाई होने का हक अदा किया और बहन की खुशी की खातिर मुझे अपनाने को तैयार हो गया, और दूसरे ने अपनी मोहब्बत को बाइज्जत मकाम दिया। मुझे कोई एतराज नहीं, मगर फिरोज ये सब कुछ सिर्फ मरियम की खुशी के लिए कर रहा है। शायद इसकी पसंद और मर्जी कोई और हो। बहुत अच्छी तरबियत की है आपने बेटों की आंटी, वो सच्चे दिल से कह रही थी। उन्होंने फकर से यूनुस और फिरोज को देखा और फिर शर्मिंदा शर्मिंदा सी रबिया के पास जा खड़ी हुई। अब तो तुम मेरे यूनुस की दुल्हन बनकर आई हो, बहू हो मेरी, आओ। उन्होंने बाजू खोल दिए। वो इनके गले लगकर रोने लगी। मुझे भी कोई एतराज नहीं, तो फिर वापसी की टिकट सिर्फ ताया ताई की करवानी है। फिरोज शौक हुआ। मेरी एक शर्त है, और रबिया की मामा के दिल की असल बात जुबान पर आ गई, जिसकी वजह से वो यूनुस की ख्वाहिशमंद थी। क्या भाई साहब यूनुस की बजाय फिरोज को बिजनेस में चेयरमैन बनाएंगे। वो हर सूरत फिरोज और रबिया को मरियम से बढ़कर देखना चाहती थी। मंजूर है, यूनुस ने खुले दिल से कहा। मरियम और ताई ने हैरत से उसे देखा। फिक्र मत करो, तुम्हारा यूनुस सच में छुपा रुस्तम है। तुम क्या समझती हो मैं अब्बू के बिजनेस की वजह से कामयाब बिजनेसमैन हूँ। नहीं यार, मेरा खुद का काम भी है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि अब्बू वाले काम पर भरोसा करके बैठा रहूं। अब्बू के काम में मेरे फिरोज और आयशा भी हिस्सेदार हैं। मेरे खुद के बिजनेस का मैं अकलौता मालिक हूँ बिला शिरकत, और ये लोग नहीं जानते कि घर के आधे अखराजात मैं खुद अपनी जेब से पूरे करता हूँ। हाँ, तुम्हारा पलड़ा यहाँ भी भारी है जनाब, वो सरगोशी के अंदाज में बोला। मरियम मुस्कुरा दी। रबिया और फिरोज का निकाह हुआ। मुबारक सलामत का शोर मचा। फिरोज अपने कमरे में चला गया और रबिया अपने कमरे में रुखसती 1 साल के बाद होना करार पाई, ताकि रबिया की भी पढ़ाई मुकम्मल और फिरोज भी फैक्ट्री की भागदौड़ अच्छी तरह संभाले। सब ने मरियम के सर पर हाथ रख और शर्मिंदा से अपने अपने कमरों में घुस गए। चले, यूनुस ने हाथ आगे किया। कहा, इसका दिल धड़कने लगा। मेरे कमरे में, मेरा मतलब है हमारे कमरे में, वो सरगोशी के अंदाज में बोला। उसने मेहंदी वाले हाथ यूनुस के हाथ में थमा दिए। न राहों में फूल बिछे थे, न सेज सजी थी, फिर भी वो किसी मलका की तरह यूनुस के कमरे में दाखिल हुई थी। खिड़की से ईद का चांद मदम हो रहा था। अपने चांद को देखकर इस चांद को देखा था। कसम खाई थी, पूरी कर दिया, अब ईद मिलो। उसने दरवाजा बंद करके बाजू आगे किए। वो अंगूठा दिखाकर आगे भाग गई। सुबह नमाज के बाद ईद मिलेंगे। वो खुशी से हंसी। बाकी सबको सुबह मिलेंगे, हमारी ईद तो अभी हुई है। उसने उसे बाजू से पकड़ कर खींचा। वो उसकी बाजू में समा गई। शोहर की मजबूत बाहें किसी किले की हसार की तरह होती हैं। मरियम ने जिंदगी में पहले तहफ्फुज को महसूस करके यूनुस की लंबी उम्र की दुआ की थी। ईद का चांद आमीन कहकर नींद के मजे लेने बादलों की आगोश में चला गया।